Welcome, my dear students, to another session on HCF and LCM. First question: which of the following cannot be the least common multiple of distinct positive integers x and y? Cannot be the least common multiple of distinct positive integers. So first thing is cannot be, can भी नहीं पूछा है. Second thing is that LCM of distinct positive integers, यानी कि they cannot be equal. Okay. If both x and y are equal, in that case LCM कितना आएगा? That will be equal to the numbers itself, यानी कि it will be equal to x or y. Isn't it so? ठीक है. Okay. So first option is 1. Can LCM of two numbers be equal to 1 if they are distinct? Is it possible? क्या ये possible है? LCM ultimately is a multiple. This is the least common multiple. But if there are two distinct numbers, तो मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा उनका? मिनिमम भी होंगे, सबसे छोटे भी होंगे, तो भी दे कैन बी 1 and 2, और 1 और 2 का भी मल्टीपल विल बी 2. Isn't it so? तो LCM कैन नॉट बी 1. 1 is not possible, and since that is not possible, so this will be the answer, because cannot भी पूछा है. ठीक है. So 1 is not possible. 1 can be the HCF. It can be HCF if numbers are co-prime, but LCM नहीं हो सकता बॉस. ठीक है. तो LCM तो नहीं हो पाएगा. Can be HCF if numbers are co-prime. That is for sure. X into Y. Is it possible? X into Y. So if both X and Y are co-primes, if both X and Y are co-primes, then yes, then LCM will be XY, X into Y. Because HCF will be equal to 1. HCF will be equal to 1. And if there are two numbers are X and Y, X is, let us say, H into A, Y is H into B. So if HCF is H, तो LCM क्या होगा? H into A into B. So if H is equal to 1, definitely, then LCM will be product of the numbers. Clear है? ठीक है, because LCM into HCF is equal to X into Y. So if HCF is 1, LCM will be X into Y. So yes, definitely that is possible. This is possible. पॉसिबल है, इसलिए आंसर नहीं होगा. ओके, इंपॉर्टेंट, ये जो मार्क कर रहा हूं, दिस इज फॉर कैन नॉट बी. ओके, सो सिंस x इंटू वाई इज पॉसिबल, दैट इज वाई इट वोंट बी द आंसर. ठीक है, पॉसिबल है व्हेन x एंड y आर कोप्राइम. थर्ड, x माइनस वाई, इज इट पॉसिबल? सोचो थोड़ा सा, क्या ये पॉसिबल है x माइनस वाई? भाई x एंड y बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स. And since LCM is least common multiple, so LCM will definitely be greater than X. LCM will definitely be greater than, greater than or equal to Y. Or X minus Y is less than X. This is less than X, so not possible. Can't be the LCM. LCM नहीं हो सकता. And since it cannot be the LCM, that is why this will be part of the answer. Okay. Option number 4, X upon Y. Is it possible? क्या x अपॉन y पॉसिबल है? आप कहोगे x अपॉन y भी तो छोटा ही होगा x से, बट क्या हमेशा ही छोटा होगा? एक केस मिस हो जाएगा, एंड दैट केस इज व्हेन y इज इक्वल टू 1. सो इफ y इज इक्वल टू 1, इन दैट केस x by y will be equal to x, and of course the LCM of x and 1 is equal to x only. So yes, this is possible. पॉसिबल है, सो आंसर नहीं होगा. ओके, सेम लॉजिक फॉर ऑप्शन नंबर 5, x. तो x होना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज इफ y इज इक्वल टू 1, LCM is x. So yes, that is also possible, and since possible, so not the answer. तो पहले 5 ऑप्शन तो इजीली हो गए अपने. लास्ट ऑप्शन x प्लस वाई, क्या ये पॉसिबल है? चांसेस तो लग रहा है नहीं पॉसिबल है, बट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे पॉसिबल होगा नहीं पॉसिबल होगा? एजम्पशन लेते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं. So let us say x is equal to h into a, y is equal to h into b, and of course a and b are co-prime. ठीक है, a and b are co-prime, तो LCM will be h into ab. h is highest common factor. Okay, ठीक है. So LCM is coming out to be x plus y, which implies that h into ab will be equal to ha plus hb.
So h into ab is equal to h into a plus b. Now since definitely highest कॉमन फैक्टर है, पॉजिटिव वैल्यू होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको बोथ साइड से. अदरवाइज एक सॉल्यूशन हो सकता था h इज इक्वल टू 0. जब भी कैंसिल आउट करते हो तो हमेशा h इज इक्वल टू 0 वाला एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम कैंसिल आउट करते हैं. सो यहाँ पे हमें पता है h कैन नॉट बी 0, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैन नॉट बी 0, दैट इज व्हाई वी कैन कैंसिल आउट इट. सो ab इज इक्वल टू a प्लस b, a into b is equal to a plus b. So how many solutions can be for this number? Okay, what we can write that this will be equal to ab minus a minus b is equal to 0. If we add 1 on both sides, ab minus a minus b plus 1 is equal to 1, and this becomes, if we take a as common, so a into b minus 1 minus 1 into b minus 1, so a minus 1 into b minus 1, this is equal to 1. The product is equal to 1 and a and b both are integers. So how many possible solutions are there? Either a minus 1 and b minus 1 both will be equal to 1, or both will be equal to minus 1. These are the only possible solutions. So if both are equal to 1, in that case a will be equal to 2 and b will be equal to 2. a equal to 2, b equal to 2, but अगर दोनों equal to 2 होंगे तो LCM तो हमारा 2 ही आ जाएगा, x प्लस वाई थोड़ी आएगा. और वैसे भी बोथ आर नॉट को प्राइम, डिस्टिंक्ट नहीं है. डिस्टिंक्ट नहीं है तो ओरिजिनल कंडीशन को भी डिससेटिस्फाई कर रहे हैं, बट सॉल्यूशन भी नहीं आ रहा है यहाँ से, बिकॉज एलसीएम 2 आ रहा है, एक्स प्लस वाई नहीं आ रहा है. ठीक है, और डिस्टिंक्ट भी नहीं है. सो डेफिनेटली ये वाला केस पर रिजेक्ट करना पड़ेगा. सेकंड केस क्या होगा? इफ a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो a विल बी इक्वल टू 0, b विल बी इक्वल टू 0, सो दे आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स. सो ये सॉल्यूशन भी सेंस नहीं बनाता. सो देयर इज नो सॉल्यूशन एज सच, नो सॉल्यूशन व्हेन a into b can be equal to a plus b, that is not possible. Okay, so since this is not possible, so this will be part of the answer. So कौन कौन से ऑप्शन है अपने part of the answer? First, third and sixth. First, third and sixth. These are part of the answer. Okay. Next question. The LCM of two numbers a and b is 120 and a और b का ratio given है, that is 3:4. Then we have to find out what will be HCF of a and b. Highest common factor of a and b क्या होगा? Ratio given है, तो if their HCF is h, तो a and b can be written as, since ratio आ रहा है 3:4 और रेशियो क्या है? ये कोप्राइम वैल्यूज जो है उन्हीं का तो रेशियो है, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन है, वही तो कटेगा, कैंसिल आउट होगा अल्टीमेटली. सो इफ a इज इक्वल टू h इंटू ए, b इज इक्वल टू h इंटू b, स्मॉल a स्मॉल b, तो रेशियो लोगे तो क्या आएगा अल्टीमेटली? h विल कैंसिल आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल a बाई स्मॉल b एंड दैट इज इक्वल टू 3/4. ठीक है, सो फर्स्ट नंबर विल बी 3h, सेकंड विल बी 4h, और एलसीएम क्या होगा बोथ नंबर्स का? h इंटू 3 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 120. सो h इज इक्वल टू 10 आ गया. क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था, h इज इक्वल टू 10. ओके, सो द को-प्राइम फैक्टर्स आर 3 and 4. ठीक है, सो 12 इंटू HCF इज इक्वल टू 120, HCF विल बी इक्वल टू 10. सिंपल क्वेश्चन. Next, the sum of the highest common factor and least common multiple of two positive integers is 680. So sum of HCF and LCM is given as 680. HCF plus LCM is equal to 680. Also given that LCM is 84 times the HCF. So LCM is equal to 84 times the HCF. If one of the numbers is 56, then what is the other number? So if the numbers are, let us say, x and y, so x will be HA, y will be equal to HP. So HCF plus LCM will be H into A plus B, that is equal to 680. Also we know LCM is 84 times HCF, so H into AB is equal to 84 into H. So H से H cancel out हो जाएगा. So A into B will be equal to 84. Okay, A into B is 84 and one of the numbers is given as 56. एक सेकेंड. सम ऑफ HCF एंड हाँ HCF और LCM का सम गिवन है. ये इक्वेशन मैंने गलत लिखा हुआ है, H इंटू ए प्लस बी नहीं होगा, बिकॉज फिर तो सेकंड नंबर मिल ही जाएगा. फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा. दिस विल बी H इंटू 1 प्लस AB. ओके, एंड A इंटू B इज 84. पुट द वैल्यू. सो H इंटू 85 इज इक्वल टू 680. सो 8 टाइम्स जाएगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी इक्वल टू 8.
and first number is 8 into 7 56. So second will be 84 क्या है 7 into 12. So second will be 8 into 12. That is 96. This will be the answer. Other number will be 96. Okay. Next question. How many pairs of positive integers x, y exist such that HCF of x and y and LCM of x and y sum is coming out to be 91? Sum is coming out to be 91. First things first, variables are given, x and y are given. So definitely we'll be getting ordered solution. If x and y were not mentioned, just in case question होता कि how many pairs of positive integers exist such that HCF of both and LCM of both that is equal to 91. ठीक है. सो अगर x and y मेंशन नहीं होते तब तो आंसर हमारा अनऑर्डर्ड होता, अनऑर्डर्ड के हिसाब से होता, बट सिंस वेरिएबल्स आर मेंशनड सो विल हैव ऑर्डर्ड सॉल्यूशन. ओके, विल बी हैविंग ऑर्डर्ड सॉल्यूशन. फाइन. So HCF and LCM का sum is 91. So x will be equal to h into a, y will be equal to h into b, and hence HCF plus LCM will be equal to h into 1 plus ab, and that is equal to 91. And 91 is equal to 13 into 7. This is 13 into 7. So what can be the possible cases? Because हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, h into ab दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. So 13 into 7 can be, this can be, first case will be, this can be 1 into 91. Second case could be, that this could be 91 into 1. Third case, this could be 13 into 7. Fourth case, this could be 7 into 13. These will be the total 4 cases. Number of solutions identify करना पड़ेगा हर एक केस में. फर्स्ट केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा? 1 into 91, यानी कि a into b will be 90 because 1 plus ab is 91. 1 plus ab is 91, so a into b will be 90, and a and b are co-prime numbers. Co-prime numbers है. 90 क्या था? 90 is 2 into 3 square into 5. 2 into 3 square into 5. तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? It can be 1 and 90, or 2 and 45, or 9 and 10, or 5 and 18. Isn't it so? यही 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे, कोई दिक्कत? These will be 4 possible cases, but since ordered solutions हैं तो इनका ऑपोजिट भी ट्रू होगा. ठीक है, तो 4 केसेस बने, ये ध्यान देना है. फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्टीमेटली. सेकंड केस 91 into 1, और यह स्ट्रेट अवे कैसे कर सकते थे? देयर आर 3 कॉम्बिनेशन, 3 प्राइम बेसेस, 2, 3 स्क्वायर एंड 5. पावर कितनी है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि सारी पावर में एक साथ रखनी पड़ेगी बिकॉज a into b is co-prime. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? अगर हम ऑर्डर्ड के केस में बात करें दैट विल बी 2 to the power n. 4 into 2 टोटल सॉल्यूशंस होंगे ना, 2 to the power n यानी 2 to the power 3, 2 to the power नंबर ऑफ प्राइम बेसेस. ठीक है, सो हमें 8 सॉल्यूशंस मिल जाएगा. सेकंड केस में दिस इज a into b is coming out to be equal to 0. क्या ये पॉसिबल है? a and b both are positive numbers, so this is not possible. No solution. No solution here. Third case 13 into 7, so a into b will be equal to 6, and if a into b is 6, there are only 2 cases, either 1 and 6 or 2 and 3. So number of solutions will be 2 cases and each multiplied by 2. Since ordered solutions are there, 2 into 2 will be 4. So यहाँ से मिले हमें 8 solutions, यहाँ से मिलेंगे 4 solutions. Last case a into b is equal to 12, and 12 is 2 square into 3. So either 1 and 12 or 4 and 3. Again 2 into 2, 4 solutions. Total solutions हो गए हमारे 8 plus 4 plus 4, 8 plus 4 plus 4, total 16 solutions are there. Numbers क्या है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए हमें. आंसर विल बी 16 सॉल्यूशंस. ओके, पेयर्स आर 8 बट ऑर्डर्ड पेयर्स आर 16. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
If LCM of two numbers 14 factorial into 15 factorial and 12 factorial into 16 factorial is x factorial into y factorial by z factorial, where x and y are two digit numbers and z is a single digit number, find mod of x minus y minus z. What will be mod of x minus y minus z? You have to solve the question for that. ठीक है, LCM की वैल्यू गिवन है x factorial into y factorial divided by z factorial, और two numbers are, first number is 14 factorial into 15 factorial, सेकंड इज 12 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल. तो सबसे पहले जो हमें कॉमन पार्ट्स दिख रहे हैं, बिकॉज एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल लें, और फिर जो अनकॉमन बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा पार्ट्स, को प्राइम फैक्टर्स बचेंगे, उनको हम अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो दैट कुड बी द वे. तो फर्स्ट नंबर कैन बी रिटन एज 14 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, और ये है 12 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल. तो फर्स्ट नंबर कैन बी रिटन एज 12 फैक्टोरियल, सेकंड में भी 12 फैक्टोरियल तो आ ही रहा है. देन 12 फैक्टोरियल के बाद में क्या रिमेनिंग बच जाएगा, 13 इंटू 14, दिस इज 14 फैक्टोरियल, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 15 फैक्टोरियल, और सेकंड में मल्टीप्लाई हो रहा है 12 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, विच कैन बी ब्रोकन इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 16. ओके, सो 12 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल तो हमें एचसीएफ दिख रहा है, दैट इज क्लियरली विजिबल. ओके, सो 12 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल तो पहले ही हमने लिख दिया. नाउ रिमेनिंग पार्ट इन द फर्स्ट नंबर इज 13 इंटू 14, इन द सेकंड नंबर इट इज 16, यानी कि 2 इज स्टिल रिमेनिंग देयर. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 एज वेल. So this will be our HCF. Now multiply by the remaining factors. Remaining factors यहाँ पे कितना बचा, 13 into 7. And in the second number, remaining factor is 8. This will be our LCM. ठीक है, 1 second. This total number will be our LCM. And this part here, this was HCF. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो LCM हमारा आ तो गया, बट अभी x फैक्टोरियल इंटू वाई फैक्टोरियल डिवाइड बाई z फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा. यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 13 इज मेंशनड, 12 फैक्टोरियल है, तो 13 को मल्टीप्लाई कर दोगे 13 फैक्टोरियल हो जाएगा. 2 इंटू 7 14 फैक्टोरियल भी हो जाएगा. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज 12 फैक्टोरियल इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 15 फैक्टोरियल इंटू 8. So this becomes 14 factorial. 14 factorial into 15 factorial and that multiplied by 8. बट हमें बनाना है x factorial into y factorial डिवाइड by z factorial, और कुछ बचना नहीं है, तो एक जुगाड़ कर सकते हैं. 15 factorial भी है हमारा, 8 में मल्टीप्लाई कर दो 2 और डिवाइड कर दो 2 से. So this will become 14 factorial into 16 factorial divided by 2, and since 2 factorial is equal to 2, so we can write this as 2 factorial. So x will be equal to 14, y will be equal to 16 and z will be equal to 2. x is 14, y is 16, z is equal to 2. So answer क्या आ जाएगा, mod of x minus y, यानी mod of 14 minus 16 minus 2. So mod of minus 2 which will be 2 only, so 2 minus 2 answer will be 0. 0 will be our answer finally. बताओ 0 लाने के लिए इतनी मेहनत कराई. ओके, क्लियर है. सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था कि अगर तुम्हें पहली चीजें ऐसे भी समझ आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें ऐसे जुगाड़ करने पड़ेंगे अलजेब्रा में. सेकंड मेथड इज कि हमें पता है, वी ऑलवेज नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ और टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, और एचसीएफ हमने निकाल लिया है ऑलरेडी. ठीक है, तो एलसीएम निकाल पाएगा उससे. तो एलसीएम इनटू व्हाट वाज द एचसीएफ, एचसीएफ वाज 12 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल इनटू 2, एंड दैट इज इक्वल टू ए इनटू बी, यानी कि 14 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल. तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 14 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2. So within seconds we got the answer, isn't it? This was so easy. Is it clear? Okay. Next question. Let x and y be positive integers while x is less than y and x plus y is 667. Given that LCM of x and y divided by greatest common divisor, which is HCF itself, LCM by HCF का जो ratio है that is 120. So we have to find all such pairs of x and y. All such pairs of x and y we have to find out. So x and y are mentioned. So this is the ordered solution. But एक और बात है जो कि ध्यान देनी, ऑर्डर तो है,
बट एक्स और वाई का ऑर्डर भी गिवन है दैट एक्स इज लेस देन वाई, यानी कि वील ओनली बी गेटिंग वन ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स इज 17 एंड वाई इज 21, ठीक है, तो ऑपोजिट विल नॉट बी ट्रू. एक्स कैन नॉट बी 21 एंड वाई 17 बिकॉज एक्स इज लेस देन वाई. सो विल बी गेटिंग ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा. तो ऑर्डर तो है बट सॉल्यूशंस हमारे अनऑर्डर्ड जैसे ही आएंगे. क्लियर? बिकॉज एक्स लेस देन वाई इज गिवन. ओके, दिस should be clear. Now x plus y is 667. If x is h into a, y is h into b, so x plus y becomes h into a plus b, and that is 6 into 6. Sorry, 667, not 6 into 6. LCM by HCF यानी कि h into ab divided by h. This is 120. So a into b is coming out to be 120. ओके, a इंटू बी इज इक्वल टू 120 और h इंटू ए प्लस बी 667. अब 667 प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? 3 का मल्टीपल तो नहीं है, 5 का नहीं है, 7 का मल्टीपल है, तो 7 का भी मल्टीपल नहीं है. कहां तक चेक करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 667 इज रफली 26 के आसपास आएगा बिकॉज 25 का स्क्वायर इज 625. तो 26 से छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर्स को चेक करना पड़ेगा. 3 इज नॉट देयर, 7 इज नॉट देयर, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 650 प्लस 17, 13 का मल्टीपल है 650, नो 13 का भी डिविजिबल नहीं है, 13 का भी मल्टीपल नहीं है. 17 74 द 680, 680 माइनस 13, तो 17 का भी मल्टीपल नहीं है बिकॉज 663 वुड हैव बीन द मल्टीपल ऑफ 17. 19 का मल्टीपल है क्या? 19 3 57, तो 570 प्लस 97, 19 का भी मल्टीपल नहीं है. लास्ट नंबर टू बी चेक्ड इज 23. क्या 23 का मल्टीपल है? 23 3 690, 23 इंटू 30 690, 690 से 23 छोटा है, तो यस 23 का मल्टीपल है. तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज 23 इंटू 29. होता है ना कई बार हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब नहीं बनेगा, अब ये डिविजिबल नहीं होगा किसी नंबर से, बट लास्ट नंबर से डिविजिबल निकला है कि नहीं. लेसन ऑफ लाइफ कि फैसला होने से पहले हार मान लूं कैसे, जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं. तो जब तक फाइट बाकी है तब तक उम्मीद बाकी है. होप इज ऑलवेज देयर. 23 इंटू 29, ठीक है. सो होप वाज ऑलवेज देयर एंड दिस वाज नॉट अ प्राइम नंबर. 23 इंटू 29 इज 667. अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं? सो h इंटू ए प्लस बी है, सो दिस कुड बी 4 केसेस बनेंगे. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज भाई h इंटू ए प्लस बी के लिए क्या क्या केसेस बनेंगे? इधर दिस इज 1 एंड 667 और 667 एंड 1 और 23 and 29 और 29 and 23. 4 cases. But since a into b is also coming out to be 120, तो क्या सेकंड वाला केस पॉसिबल होगा कि a plus b is equal to 1? वैसे भी a plus b can be equal to 1. क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता. तो सेकंड केस को तो पहले एलिमिनेट कर देते हैं. फर्स्ट केस पे ध्यान दो. कैन a plus b equal to 667 when a into b is equal to 120? क्या दो ऐसे इंटीजर हो सकते हैं जिनका सम बड़ा हो उनके प्रोडक्ट से? इज इट पॉसिबल? अगेन नॉट पॉसिबल. So first case भी possible नहीं है. So there are only 2 cases, third case and fourth case. Third case में a plus b is 29 and a into b is 120. Okay, तो numbers के लिए approximation करना पड़ेगा. 120 चाहिए हमें, ठीक है. So let us say कोई भी दो नंबर ले लो, स्टार्ट करो तुमने let us say 2 and 27 लिया, 54 आ रहा है. नंबर्स को और क्लोज लाओगे प्रोडक्ट बढ़ेगा. 4 into 25 100 आ रहा है, यानी और क्लोज आना पड़ेगा. 5 into 24 is equal to 120. This is equal to 120. तो we got one solution. ठीक है. और क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर भी गिवन है x इज लेस देन y, यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, 2 सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे यहाँ पे. सेकंड केस में व्हेन द सम इज 23, क्या नंबर्स हो सकते हैं? 10 एंड 13, 130 आ रहा है, यानी कि नंबर्स के बीच का गैप थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा. 8 एंड 15, यस 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 120. समझ पा रहे हो? डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें नंबर्स के बीच का गैप कम करना है या ज्यादा करना है. टाइम सेव होगा उससे. अदरवाइज अननेसेसरली तुम रैंडम नंबर्स लेते रहोगे. हमेशा एक ऑर्डर में नंबर्स लेने हैं, रैंडम नंबर्स नहीं लेने हैं, बिकॉज उसमें फिर कैलकुलेशन हमारा बार बार करना पड़ेगा और टाइम भी इंक्रीज होगा. ओके, तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 5 इंटू 24, यानी कि नंबर्स हो जाएंगे इन द फर्स्ट केस. h क्या आ जाएगा? h इज 23, तो 23 इंटू 5 फर्स्ट नंबर विल बी, सिंस x इज लेस देन y, तो x विल बी इन द फर्स्ट केस 23 इंटू 5 विच इज 115 एंड y विल बी 23 इंटू 24. ओके, so number will be 552. In the second case,
first number will be x will be 23 into 8, 184, and second number will be 23 into 15, 345. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे. 8 and 15, 29 था, 23 थोड़ी था एलसीएम. एचसीएफ हमारा 29 था. और गलती आइडेंटिफाई कैसे हुई? बिकॉज जैसे ही नंबर्स आए तो मैंने देखा सम 67 नहीं आ रहा है. तो अपनी जो बेसिक गलती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जल्दी में हमने 23 सेकंड टाइम भी एचसीएफ ले लिया, जबकि सेकंड टाइम एचसीएफ हमारा 29 है. तो 29 into 8 कितना आया? दैट इज 232. एंड 29 into 15, 29 into 10, 290 plus 145, that is 435. So these are the two solutions for x and y. Okay, these are the answers. Is this clear? Okay, next question. If a and b are positive 4-digit numbers such that HCF of a and b is equal to 3, so what is the smallest possible value for LCM of a and b? HCF is already given. A and b are positive 4-digit numbers. They are 4-digit numbers. HCF is 3. So smallest possible value for LCM. So numbers can be 3x and 3y, because 3 is the HCF, and x and y will be co-prime. So LCM will be equal to 3 into xy. And we have to find out smallest possible value of 3 into xy. So if 3 into xy has to be minimum, that implies that x into y should also be minimum, because 3 to constant hai. X or y ka product should be minimum. Okay, but these are 4-digit integers. Both a and b are 4-digit integers. तो minimum भी value होगा तो कितना होगा? They have to be greater than or equal to 1000. And if that is so, तो x will be greater than equal to 1000 by 3, यानी कि x must be greater than 333. 333 से तो बड़ा होना पड़ेगा. x भी 333 से बड़ा होगा, y भी 333 से बड़ा होगा. And they also have to be co-prime. तो सबसे छोटी वैल्यूज x और y की क्या मिल सकती हैं? जस्ट 333 से बड़ी वैल्यू ले लो, और बोथ शुड बी कॉन्सेक्यूटिव. कॉन्सेक्यूटिव होंगे तो को-प्राइम होंगे. कॉन्सेक्यूटिव होंगे तो एचसीएफ हमारा 1 आएगा, डेफिनेटली को-प्राइम होंगे. तो बस x और y की वैल्यूज मिल गई स्ट्रेट अवे. x विल बी इक्वल टू 334 एंड y विल बी इक्वल टू 335. ठीक है. अगर x और y के लिए ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस पूछो तो इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है कि x माइट बी इक्वल टू 335 एंड y विल बी इक्वल टू 334. बेसिकली मल्टीप्लाई करोगे a और b के लिए. अगर ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस पूछा होता तो मल्टीप्लाई कर देते 3 से, हमें 2 आंसर्स मिलते. बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी विच विल बी यूनिक इन बोथ केसेस. एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम विल बी इक्वल टू 3 into 334 into 335, and this will be minimum possible value of the LCM. Minimum possible value of the LCM. This will be the answer. Okay, this will be our answer. कोई दिक्कत? ठीक है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट 4-digit positive integers, what is the smallest possible value for LCM of a and b? This time a and b are, लास्ट क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट तो मेंशन नहीं था, बट ऑब्वियस था कि डिस्टिंक्ट होंगे. क्यों ऑब्वियस था? बिकॉज एचसीएफ वाज मेंशन. एचसीएफ वाज इक्वल टू 3. तो अगर एचसीएफ हमारा 3 है और नंबर्स 4-digit नंबर्स है, तो ऑब्वियसली नंबर्स डिस्टिंक्ट होंगे. ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, बिकॉज अगर ए इक्वल टू बी आ जाएगा तो दोनों नंबर्स 3 हो जाएंगे, बिकॉज एचसीएफ 3 है. दैट इज वाई मेंशन नहीं था, बट ऑब्वियस था कि दोनों नंबर्स डिस्टिंक्ट होंगे. यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट 4-digit पॉजिटिव इंटीजर्स, बिकॉज एचसीएफ इन दिस केस इज नॉट मेंशनड. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी? ओके, सो a is equal to h into x, b is equal to h into y, and we need to find out the minimum value of x, h into x into y, because that will be the LCM value. So we have to minimize h into x into y.
while it is given that a and b are distinct 4-digit positive integers. Okay, so both a and b are greater than equal to 1000, greater than equal to 1000. So what should be our approach in this case? देखो, you can see it h into xy को मिनिमाइज करना है, we can see h into xy as h into x into y या फिर h into y into x. ठीक है, h into x क्या है, a है, so this is equal to a into y, और a into y को हमें मिनिमाइज करना है. बट मिनिमम कंडीशन क्या है कि a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, तो a तो 4 डिजिट का नंबर होगा ही होगा, y को मिनिमाइज कर लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा. ठीक है, यानी कि a शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, प्रोडक्ट को मिनिमाइज करना है तो a एंड y बोथ शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, a शुड बी मिनिमम एंड y शुड आल्सो बी मिनिमम. तो a शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू 1000, जितना ज्यादा 1000 के क्लोज होगा उतना बेटर है, और y शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू 1. ठीक है, एज क्लोज एज पॉसिबल टू 1. प्रोडक्ट हमारा मिनिमम आ जाएगा. ओके, क्या ये बात क्लियर है? Now let us say if we take a is equal to 1000, so what can be minimum value of y, because x and y have to be co-prime. What can be minimum value of y? Can y be equal to 2? क्या y can be equal to 2? Is it possible? Because a is 1000, which is 2 cube into 5 cube. ठीक है, और अगर हमने y इज इक्वल टू 2 ले लिया तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा in that case? HCF will have to be 1000, equal to 1000, because if y is equal to 2, then definitely हमारा कॉमन फैक्टर क्या आएगा? HCF will be 1000 and LCM will be equal to 2000. क्या इससे छोटा वैल्यू होना पॉसिबल है भाई? एक नंबर हो जाएगा 1000, एक हो जाएगा 2000. ओके, इससे छोटा वैल्यू होना तो पॉसिबल ही नहीं है. सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. वन नंबर इज 1000, सेकंड इज 2000. स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू विल बी 2000 ओनली. दिस विल बी द आंसर. इज दिस क्लियर? ठीक है, कुछ भी और करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे इवन हिट एंड ट्रायल से भी स्टार्ट में सोच सकते थे कि फर्स्ट नंबर को 1000 ले लिया, सेकंड को ले लिया 2000. आंसर विल बी 2000. दैट विल बी द आंसर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. आई बिलीव इस सेशन में जो भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किए समझ में होंगे, एंड इफ देयर इज एनी डाउट मेक श्योर टू हिट द कमेंट सेक्शन एज वेल. और अगर सेशन पसंद आया तो फिर सेशन को लाइक भी जरूर करना है. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.